Namaskar. I am Professor Nandini Sahu, Vice Chancellor, Hindi University, West Bengal. We have introduced a YouTube lecture series, a very special lecture series on comparative world literatures in the Hindi University, West Bengal since January 2025 after I joined the position of the Vice Chancellor. In the process of the series, we have invited more than 35 scholars, researchers, senior professors, academicians, creative writers, critics, and theorists all over the world, and they have delivered lectures for our university under the umbrella term comparative world literatures, and they have taken their specific subjects like their own research, and then they have taken critical pedagogy from different world literatures, and then they have become an integral part of the Hindi University West Bengal special lecture series on comparative world literatures. Today, I am immensely happy that this lecture series has created ripples in Indian academia and outside. Many universities have approached us to utilize the lectures delivered by our experts as a part of their classroom teaching and research and theory classrooms, as far as their literary theory classes are concerned or comparative literature classes are concerned. And this is a milestone that within 6 months of the introduction of the lecture series, thousands and thousands of researchers and scholars have been closely associated with us, and we are editing a volume, Comparative World Literatures, where we have invited research papers from all the speakers who have already delivered lectures for us. Also, we have invited those scholars who are going to be a part of our lecture series, and they have shown enthusiasm to contribute their full-length papers to the edited volume Comparative World Literatures, which eventually we will use as a part of our coursework on comparative world literatures when we introduce the Department of Comparative World Literatures in Hindi University. Also, I am immensely happy to share with our scholars, our readers, and our enthusiasts that the internal faculty members of Hindi University have started contributing in a meaningful way to the pedagogy of comparative world literatures. They have started delivering lectures under the umbrella term comparative world literatures, and 2 or more internal faculty members of Hindi University have already delivered their lectures, and more number of faculty members have registered with the series, and they are discussing their research with me, and very soon, within a couple of weeks, we will complete the recordings of the internal faculty members of Hindi University who have also been critically a part of the comparative world literature series, like translation studies departments, then the Hindi department people, history and political science department people. How they can be a part of comparative world literatures is the question here, the point of concern here. Translation studies people can use comparative literature not just as a linguistic exercise but as a method of epistemic mediation. They allow ideas, concepts, and narratives from Hindi and other Indian languages and world languages to enter the global academic conversation while retaining their cultural and philosophical integrity. For history and political science departments, translated archives, oral histories, and political texts can be comparatively used and read to question the dominant narratives in the world, and also to rediscover the silenced texts, the silenced voices. Like I read somewhere that history is written by the winner,
Now, what happens to the history of the so called loser? Ethnomusicologists, historians, they take up the history of the so called loser as a part of their research. So, this is what our history department people are doing, and I am very happy to share that many of them have been highly published and they are working on ethnomusicology, on history and pedagogy of the historical texts, which are also a part of the comparative world literatures in a very intertextual and polyphonic way, in a very interdisciplinary, transdisciplinary, and multidisciplinary way. For history and political science people, translated archives and oral histories and political texts, they speak out for the people who are marginalized, who are the subaltern, who do not have a voice. And this makes comparative literature a methodology of resistance against epistemic colonialism, epistemic violence against the subaltern. And then, when it comes to languages for global theorization, through comparative literature frameworks, Hindi and other literature departments, they can be, they take it as a part of their history, their research and publication, and these researches can be used as models for a theoretical source in their own rights, producing indigenous concepts, aesthetic categories, and political critiques. Comparative readings of Hindi texts in our Hindi university, alongside the world literatures, they can help political science people explore cultural nationalism, which we are successfully doing, subaltern politics, and movements of resistance, while history can locate them in specific temporal and sociological and social contexts. And then, when it comes to reframing world literature from the global south, comparative literature enables the comparative world literature departments to challenge the canon by foregrounding, South dialogues and Hindi dialogues with African, Latin American, Southeast Asian texts instead of the usual North South pedagogy or North South dichotomy. We believe in inclusivity and flexibility, and through this comparative world literatures lecture series, we have been successfully doing it, and I am very happy to share here that not just external experts but the internal faculty members from Hindi, translation studies, history, and political science departments from our university have been substantially contributing. They have been delivering lectures. Comparative literature enables the world literatures to challenge the canons, and also how comparative literatures engage with political science to map these literary exchanges against patterns of decolonization, post colonial alliances, and transnational solidarity movements is the point of concern here. And our faculty members have been constantly discussing these ideas and ideologies with me, and they have been contributing to the lecture series through publications and through lectures, and we are sharing those YouTubes with you continuously. History can trace the deep structures of cultural memory, migration, labor through these comparative readings. And when it comes to memory studies or mnemoculture, through comparative world literature's pedagogy, we are also contributing to the narratives as archives of political and historical knowledge systems. Literary texts, when approached through comparative literature, become the alternative archives for history and political science, preserving the dissent, everyday resistance, and emotional registers that are absent in our state records. We are making the silenced voices speak. Through translation studies, we play a crucial role by making such living archives, by creating such living archives on dying languages, on dying cultural heritages, and we are making those available, and we are enabling the cross cultural research and pedagogy through this lecture series.
Hindi's vast corpus of novels, poetry, and folk literature becomes a living laboratory for these archival excavations. We are dealing with Hindi literature, Bengali literature, English literature, and all other Indian languages and literatures, and also world literatures through this particular very important series that has created ripples in Indian academia. Comparative literature has become a pedagogical common for us. In teaching, comparative literature offers an interdisciplinary classroom where translation studies, Hindi, world literatures, history, and political science they co-teach models like revolutions in literature, colonial encounters, memory and migration studies, and our students are learning how to read a poem or how to read a novel or how to read any text from history or public administration or political science by applying the comparative research methodology. We are very rich in research methodology classes in the Hindi University. In fact, our faculty members take very special classes on research methodology for our students, and those classes are extremely useful for the students, and they have given me the feedback about it. This fosters the 21st century research skills, critical multilingual reading, cross cultural analysis, and the ability to recognize literature as both aesthetic and political action. The personal is political, isn't it? So, in the Hindi University, the matters that we discuss as a part of our personal discourses through this comparative world literature series are also our political, academic, and social statements. We have created ripples, we have created a signature of our own, a brand of our own, brand Hindi University. Once again, I congratulate all the external speakers who have also contributed to our comparative world literatures lecture series and the internal faculty members who have started contributing to the series in a big way. Thank you. Namaskar. गुड्डी कुमारी, हिंदी विश्वविद्यालय की शिक्षिका, हिंदी और अनुवाद विभाग से। तुलनात्मक विश्व साहित्य पर हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर वाइस चांसलर नंदिनी साहू मैडम के द्वारा समय समय पर वेबिनार आयोजित करवाए जाते रहे हैं और मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि मैं भी आज इस सीरीज का हिस्सा बनी हूं और मैं प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को अपना प्रणाम निवेदित करते हुए अपना बात शुरू करना चाहती हूँ। तुलनात्मक विश्व साहित्य। विश्व साहित्य वह व्यापक धरातल है जहां विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों की साहित्यिक कृतियां एक मंच पर उपस्थित हो जाती हैं। इसमें तुलनात्मक अध्ययन की भूमिका
अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम विभिन्न साहित्यिक परंपराओं, शैलियों, विचारधाराओं और सांस्कृतिक मूल्यों की तुलना कर उनके अंतर संबंध को समझते हैं। तुलनात्मक अध्ययन न केवल साहित्य के वैश्विक परिप्रेक्ष्य को उभारता है, बल्कि मानवीय अनुभूतियों की समानताओं और भिन्नताओं को भी रेखांकित करता है। इस दिशा में अनुवाद की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अनुवाद ही वह सेतु है जो विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करता है और स्थानीय साहित्य को वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह न केवल भाषिक स्थानांतरण है, बल्कि साहित्यिक अंतरण भी है, जिसमें अनुवाद को मौलिक रचना की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। अनुवाद के माध्यम से ही तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है और पाठक को विभिन्न देशों की साहित्यिक समृद्धि से रूबरू होने का अवसर मिलता है। इस प्रकार विश्व साहित्य के निर्माण, विस्तार और अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण और अनुवाद दोनों की ही केंद्रीय भूमिका होती है, जो साहित्य को सीमाओं से परे ले जाकर मानवीय अनुभवों की खोज करता है। इसी संदर्भ में मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहूंगी कि भाषा और संस्कृति की सीमाओं से परे साहित्य, तुलनात्मक विश्व साहित्य इस विचार को सुदृढ़ करता है कि साहित्य एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो मनुष्यता को जोड़ती है, न कि विभाजित करती है। गोइथे ने 1827 में इकरमैन के साथ बातचीत में कहा था, नेशनल अप्रोच ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर इज एट हैंड। यह कथन आज के वैश्विक साहित्यिक विमर्श में एक केंद्रीय सूत्र बन गया है। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से जब एक फ्रांसीसी उपन्यास को भारतीय पाठक पढ़ता है, या जब एक अफ्रीकी कविता जापानी श्रोता को छूती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि मानवीय भावनाएं सीमाओं में नहीं बढ़ती। डेविड डॉमरस इसके कथन के लिए कहते हैं कि a work has an effective life as world literature whenever and wherever it is actively present within a literary system beyond that of its original culture. तुलनात्मक साहित्य हमें यह समझने का अवसर देता है कि भाषा मात्र संप्रेषण का माध्यम है, जबकि साहित्य मूल तत्व, अनुभव और संवेदना है। रमेश त्रिपाठी अपने ग्रंथ तुलनात्मक साहित्य सिद्धांत और संदर्भ में लिखते हैं, विविधताओं के भीतर अंतर्निहित एकता को पहचानना ही तुलनात्मक साहित्य का उद्देश्य है। जब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो हम यह भी समझते हैं कि सांस्कृतिक भिन्नताएं संवाद का अवरोध नहीं, बल्कि विविधता की संपदा है। इसीलिए विश्व साहित्य आज एक ऐसी चेतना बन गया है जो न केवल सीमाओं को पार करती है, बल्कि समूचे विश्व और मानवता को केंद्र में रखकर आगे बढ़ती है। इसके संदर्भ में मेरा अगला पॉइंट है कि तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद की आवश्यकता। आज वैश्विक साहित्य के युग में तुलनात्मक साहित्यिक अध्ययन और अनुवाद की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के माध्यम से एक दूसरे को जोड़कर उनके बीच अंतर्निहित साम्य और भिन्नताओं को समझने का अवसर देता है। क्लाउड लवी स्ट्रॉक्स ने कहा है, अंडरस्टैंडिंग कम्स नॉट फ्रॉम आइसोलेशन बट फ्रॉम कंपैरिजन। अर्थात साहित्य को समझने की प्रक्रिया तुलना के बिना अधूरी है। अनुवाद इस तुलनात्मकता का मुख्य आधार है। यह न केवल भाषाओं के बीच सेतु का कार्य करता है, बल्कि संस्कृतियों और भावनात्मक अनुभवों को भी एक दूसरे से जोड़ता है। इसी संदर्भ में डेविड डेमरोस कहते हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर इज राइटिंग दैट गेन्स इन ट्रांसलेशन। अनुवाद साहित्य को सीमाओं से मुक्त करता है, उसे वैश्विक पाठक समुदाय से जोड़ता है। भारतीय संदर्भ में सुनीता झा कहती हैं कि अनुवाद और तुलनात्मक अध्ययन साहित्यिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। अतः यह दोनों विधाएं आधुनिक साहित्यिक विमर्श का अनिवार्य अंग है, जो न केवल बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, बल्कि वैश्विक सह अस्तित्व की भावना को भी मजबूत करती है।
वैश्विक साहित्य क्या है? विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के साहित्यिक कार्यों का समावेश। वैश्विक साहित्य को मैंने 3 बिंदुओं में रखा है। विभिन्न देशों, भाषाओं, संस्कृतियों के साहित्यिक कार्यों का समावेश, यह पहला बिंदु है। तुलनात्मक विश्व साहित्य में वैश्विक साहित्य उस व्यापक साहित्यिक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसमें विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों के साहित्यिक कार्यों को एक साझा मंच पर रखा जाता है। यह केवल किसी एक राष्ट्रीय साहित्य तक सीमित नहीं होता, बल्कि समूचे मानव समाज के अनुभवों, विचारों, भावनाओं और सांस्कृतिक चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम तुलनात्मक दृष्टिकोण से इन साहित्यिक कृतियों का अध्ययन करते हैं, तो हमें यह समझने में मदद मिलती है अलग-अलग भाषाओं में रची गई रचनाएं कैसे एक दूसरे से संवाद करती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, मानव समाज को भी प्रभावित करती चलती हैं। वैश्विक साहित्य में जैसे रूस के दोस्तोवस्की, फ्रांस के वाल्जक, भारत के रविन्द्रनाथ ठाकुर या जापान के मुराकामी जैसे लेखक सम्मिलित हैं, जो अपने-अपने देश की साहित्यिक, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़कर भी सार्वभौमिक विषयों को स्पर्श करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इन रचनाओं की अंतर संवादिता स्पष्ट होती है, जिससे साहित्य एक सीमाहीन, समावेशी और मानवीय अनुभव की व्यापक अभिव्यक्ति बन जाता है। यह साहित्य को केवल पढ़ने का नहीं, बल्कि समझने और अनुभव करने का भी एक वैश्विक मार्ग प्रशस्त करता है। इसी संदर्भ में मेरा दूसरा पॉइंट है विश्व साहित्य का अर्थ और उद्देश्य। विश्व साहित्य उस व्यापक सामाजिक अवधारणा को व्यक्त करता है जिसमें विभिन्न देशों, भाषाओं और संस्कृतियों में रचित साहित्यिक कृतियां सम्मिलित होती हैं। इसका आशय उस साहित्य से है जो अपनी मूल भाषा, भूगोल या संस्कृति से बाहर जाकर भी वैश्विक पाठकों के लिए प्रासंगिक और बोधगम्य होता है। विश्व साहित्य केवल एक स्थान विशेष के अनुभवों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संपूर्ण मानवता की अनुभूतियों, विचारों, संवेदनाओं और संघर्षों को प्रस्तुत करता है। विश्व साहित्य हमारे भीतर वैश्विक दृष्टिकोण को विकसित करता है, जिससे हम भिन्न-भिन्न संस्कृतियों को साहित्य के माध्यम से समझ सकें। यह विविधता में एकता, अस्तित्व और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करता है, तुलनात्मक अध्ययन और अनुवाद की प्रक्रिया के माध्यम से। विश्व साहित्य भाषाई भूगोल की सीमा को पार करते हुए साहित्यिक संवाद को सशक्त बनाता है। इसके माध्यम से पाठक न केवल अपने देश के साहित्य को गहराई से समझते हैं, बल्कि अन्य देशों के दृष्टिकोण, जीवन दर्शन और रचनात्मक संवेदनाओं से भी परिचित होते हैं। इस प्रकार विश्व साहित्य का उद्देश्य मानवीय चेतना को साझा रूप से उजागर करना और सांस्कृतिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना है। इस संदर्भ में मेरा अगला पॉइंट है गेटे द्वारा विश्व साहित्य की संकल्पना। विश्व साहित्य की संकल्पना को सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन लेखक योहान वुल्फमैन वॉन गेटे ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रस्तुत किया था। गेटे का मानना था कि साहित्य अब केवल किसी एक राष्ट्र की परिसीमा में सीमित नहीं रह सकता, बल्कि उसे विश्व स्तर पर पढ़ा, समझा और सराहा जाना चाहिए। विभिन्न देशों की सांस्कृतिक और साहित्यिक रचनाओं को एक दूसरे से संवाद करना चाहिए और श्रेष्ठ रचनाओं का अनुवाद होकर पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। वह कहते हैं, I am more and more convinced that poetry is the universal possession of mankind, revealing itself everywhere and at all times in hundreds and hundreds of men. गेटे के अनुसार साहित्य मानवता की धरोहर है जो हर काल और हर भूभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। उनका यह विचार एक साहित्यिक चेतन क्रांति की शुरुआत थी। उनकी दृष्टि में विश्व साहित्य संवाद, समझ और सहिष्णुता का माध्यम बनकर उभरता है।
तुलनात्मक साहित्य एक परिचय, इसे मैंने 2 बिंदुओं में बताने की चेष्टा की है, परिभाषा और उद्देश्य इसका प्रथम बिंदु है। तुलनात्मक साहित्य एक अंतर विषयी साहित्यिक अध्ययन की विधा है जिसमें विभिन्न देशों, भाषाओं, संस्कृतियों और साहित्यिक परंपराओं की रचनाओं का आपसी संबंध, समानता और भिन्नता के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। यह साहित्य को किसी एक भाषा या राष्ट्र की सीमा में बांधने के बजाय परिप्रेक्ष्य में देखने का दृष्टिकोण प्रदान करता है। तुलनात्मक साहित्य का उद्देश्य सांस्कृतिक संवाद बहुलता की समझ और मानवीय मूल्यों की व्यापकता को बढ़ावा देना है। इसके माध्यम से यह जाना जाता है कि भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों में रचे गए साहित्य एक दूसरे से किस प्रकार संवाद करते हैं। यह अनुशासन, अनुवाद, आलोचना, दर्शन, इतिहास और अन्य कलाओं के साथ समन्वय करते हुए साहित्य को गहराई से समझने में सहायक होते हैं। तुलनात्मक साहित्य विविधता में निहित एकता की खोज करता है और साहित्यिक अध्ययन को सीमाओं से मुक्त कर एक वैश्विक मानवीय चेतना की ओर ले जाता है। दूसरा बिंदु पर मैं आना चाहती हूँ, साहित्यिक कृतियों का पारस्परिक अध्ययन। विश्व तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत साहित्यिक कृतियों का पारस्परिक अध्ययन विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और कालखंडों की रचनाओं को एक साथ रखकर उनकी अंतर संवेदना, समानताओं और भिन्नताओं को समझने की प्रक्रिया है। यह अध्ययन केवल शैली या विषय पर नहीं बल्कि सामाजिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी होता है। उदाहरण के तौर पर प्रेमचंद और टॉल्स्टॉय की रचनाओं में सामाजिक यथार्थवाद, कालिदास और शेक्सपियर में नाटकीय सौंदर्य और प्रकृति चित्रण, टैगोर और गोइथे में मानवतावाद की झलक देखी जा सकती है। इसी प्रकार जापानी लेखक हारुकी मुराकामी और काफ्का की लेखनी में आधुनिकता और अस्तित्ववाद के बिंब उभरते हैं। अफ्रीकी लेखक चिनुआ अचेवे और दक्षिणी अमेरिकी लेखक गैब्रियल गार्सिया मार्केज की रचनाओं में उपनिवेशवाद और लोक चेतना की समान अभिव्यक्ति मिलती है। वह पारस्परिक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य भिन्न होते हुए भी मानवीय अनुभवों की साझा भूमि पर खड़ा है। इसी संदर्भ में मैं अपने अगले पॉइंट पर आना चाहती हूँ, तुलनात्मक अध्ययन के उद्देश्य, समानताओं और भिन्नताओं की पहचान। इसका प्रथम पॉइंट है, तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और युगों की रचनाओं में समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करना है। यह अध्ययन हमें यह समझने में सहायक होता है
कि मानव अनुभवों की मूलभूत संवेदनाएं जैसे प्रेम, पीड़ा, स्वतंत्रता, युद्ध या प्रकृति किस विश्व साहित्य में किस प्रकार समान रूप से प्रकट होती हैं, किंतु उनके प्रस्तुतिकरण में सांस्कृतिक व भाषाई विशिष्टता के कारण भिन्नताएं उत्पन्न होती है। उदाहरणतः तुलसीदास की रामचरितमानस और होमर की ओडिसी दोनों में वीर नायक की यात्रा और आदर्श का चित्रण है, परंतु शैली, प्रतीक और सांस्कृतिक संदर्भ अलग है। इसी प्रकार गालिब की गजलों और पाब्लो नेरुदा की कविताओं में प्रेम की अभिव्यक्ति सार्वभौमिक होते हुए भी शैलीगत दृष्टि से भिन्न है। इस तरह तुलनात्मक साहित्य रचनाओं में एक ओर वैश्विक मानवीय अनुभवों की एकता दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर मानवीय परंपराओं और चिंतन की विशिष्टता को भी रेखांकित करता है। इसी संदर्भ में दूसरे पॉइंट है विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समझ। तुलनात्मक साहित्य में विभिन्न साहित्यिक दृष्टिकोणों की समझ साहित्य को बहुआयामी और समावेशी दृष्टि से देखने का अवसर प्रदान करती है। यह अध्ययन हमें बताता है कि कैसे अलग-अलग सांस्कृतिक, दार्शनिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों ने साहित्यिक रचनाओं की दृष्टि और विषय वस्तु को प्रभावित किया है। उदाहरण स्वरूप कबीर की वाणी में आध्यात्मिक निर्गुण भक्ति की झलक मिलती है, तो वहीं शेक्सपियर के नाटकों में मानवीय भावनाओं और नैतिक द्वंद्वों की गहराई। टॉल्स्टॉय ने सामाजिक विषमता और करुणा को केंद्र में रखा, जबकि जियो पॉल सार्त्र और कामू ने अस्तित्ववाद की चेतना को स्वर दिया। टैगोर और गोएथे ने मानवता को साहित्य का मूल आधार माना। गेटे का कथन है, पोइट्री इज द यूनिवर्सल पोजेशन ऑफ मैनकाइंड। इस विचार को सशक्त करता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि साहित्य विभिन्न दृष्टियों से पुष्ट होकर वैश्विक संवाद और मानवीय एकता का माध्यम बनता है। इस कड़ी में मेरा अगला पॉइंट है अनुवाद, सेतु और साधन। अनुवाद क्या है? चूंकि बात विश्व तुलनात्मक साहित्य की हो रही है, तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के बिना संभव है ही नहीं। इसीलिए अनुवाद की भूमिका को इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। तो जानते हैं कि अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक भाषा में व्यक्त विचारों, भावनाओं, ज्ञान और अनुभूतियों को दूसरी भाषा में अभिव्यक्त किया जाता है। यह केवल भाषिक परिवर्तन नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों के बीच सेतु और संवाद का साधन है। अनुवाद साहित्यिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक और दर्शन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक आदान प्रदान को संभव बनाता है। यह न केवल रचना को नई भाषाओं में प्रस्तुत करता है, बल्कि मूल भाव, संदर्भ और सांस्कृतिक गहराई को भी बनाए रखता है। इस प्रकार अनुवाद भाषाई विविधता में एकता और समझ का माध्यम है। अनुवाद के संदर्भ में मेरा दूसरा पॉइंट है साहित्यिक संवाद का माध्यम।
अनुवाद साहित्यिक संवाद का प्रभावशाली माध्यम है, जो भिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सीमाओं के बीच सेतु का कार्य करता है। यह प्रक्रिया केवल शब्दों का स्थानांतरण नहीं, बल्कि भावों, संवेदनाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का आदान-प्रदान है। जब कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद पश्चिमी भाषाओं में हुआ, तो भारतीय काव्य सौंदर्य से विश्व साहित्य समृद्ध हुआ। टैगोर की गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद ने उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलाया और भारतीय दर्शन को वैश्विक मंच पर पहुंचाया। शेक्सपियर, गोइथे, दोस्तोवस्की, पाब्लो नेरुदा और रूमी जैसे लेखकों की रचनाएं जब भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई, तो उनकी साहित्यिक संवेदनाएं भारतीय पाठकों से संवाद कर सकी। इसी प्रकार प्रेमचंद, गालिब, महाश्वेता देवी तथा अन्य भारतीय रचनाकारों के अनुवादों ने भारतीय जीवन और संवेदना को अंतरराष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचाया। जीवन और संवेदना को अनुवाद अच्छी तरह और भली-भांति व्यक्त कर सकता है। अनुवाद के माध्यम से साहित्य सीमाओं को लांघता है और एक मानवीय धरातल का निर्माण करता है। यह संवाद केवल भाषाई सेतु बनाता है यह संवाद न केवल भाषाई सेतु बनाता है, बल्कि यह संवाद वैश्विक सह अस्तित्व और साहित्यिक समरसत्ता की भावना को भी पुष्ट करता है। मेरा अगला पॉइंट है वैश्विक साहित्य की सुलभता में योगदान। अनुवाद वैश्विक साहित्य को सुलभ बनाने में सेतु की तरह कार्य करता है। यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित कर साहित्यिक समृद्धि को वैश्विक स्तर पर साझा करने का अवसर प्रदान करता है। रामायण, महाभारत, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत, गीतांजलि, आनंदमठ, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, रेत समाधि, हर्ट लैम्प जो ओरिजिनली कन्नड़ में थी, जिसे दीपा अवस्थी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, आदि अनेक रचनाएं हैं जो विश्व पटल पर अपना पहचान बना पाई, जो अनुवाद के माध्यम से ही सुलभ हो पाया। इसी तरह गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज की 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड को मूलतः स्पेनिश में लिखी गई थी, उसके अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद के कारण ही वह उपन्यास विश्व की अमूल्य धरोहर बनी। वेद, उपनिषद, मानव आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों पर यह गहन प्रकाश डालती है।
अनुवाद के संदर्भ में कुछ और बातों को मैं पॉइंट आउट करते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगी। गैब्रियल गार्सिया मार्केज की 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड को, जो मूलतः स्पेनिश में लिखी गई थी, उसके अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में अनुवाद के कारण ही वह उपन्यास विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर बनी। 2 भागों में प्रकाशित मिगेल दे सेर्वांतिस का उपन्यास डॉन किकोते दे ला मांचा हिस्पानी संसार की महत्वपूर्ण क्लासिक कृतियों में से एक है। इसे पहले आधुनिक उपन्यास के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। प्रकाशन के 400 साल बाद भी अगर यह उपन्यास प्रासंगिक है, तो अपने विषय के साथ-साथ अनुवाद को भी यह श्रेय है, जिसके कारण यह समय और इतिहास में अपनी जगह के प्रति एक व्यंग्यपूर्ण आत्म सजगता आज भी पाठकों को आकर्षित करती है। सेर्वांतिस और उनका उपन्यास आज के दौर के राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से भी पढ़ा जा रहा है। रामायण के संदर्भ में 1987 में लिखे 300 रामायणास 5 एग्जाम्पल्ड एंड 3 शॉर्ट्स ऑन ट्रांसलेशन शीर्षक लेख में ए.के. रामानुजन कहते हैं कि किसी भी क्लासिक पाठ को पढ़ने के तरीके हैं जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं और एक मूल पाठ से हटकर भी हो सकता है। इसी तरह इतालवी लेखक इटालिनो काल्तिनो भी अपने मशहूर लेख वाई रीड द क्लासिक्स, जो 1999 में आई थी, बताते हैं कि किसी भी क्लासिक पाठ का पूरा आनंद तब उठाया जा सकता है जब हम उसे अपने दौर के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। यह सभी बातें अनुवाद के माध्यम से ही हम तक पहुंचती है और इस प्रकार अनुवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जो साहित्य को सीमाओं से मुक्त कर उसे वैश्विक बनाती है और साहित्य को सुलभता प्रदान करती है। मैं अपने अगले पॉइंट में आना चाहूंगी कि विश्व साहित्य में भारतीय साहित्य का स्थान। इसे मैंने 2 पॉइंट में रखा है। तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय साहित्य की भूमिका, यह इसका पहला पॉइंट है। विश्व साहित्य में भारतीय साहित्य का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जड़ें हजारों वर्षों पुरानी है और यह विविध भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराओं का समृद्ध संगम है। तुलनात्मक दृष्टि से भारतीय साहित्य विश्व साहित्य को केवल कथानक और कल्पना ही नहीं, अपितु गहन दर्शन, जीवन दृष्टि और आध्यात्मिकता भी प्रदान करता है। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, भक्ति काव्य, तुलसी, सूर, कबीर, मीरा से लेकर आधुनिक काल के लेखकों तक हर युग का साहित्य मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों को प्रस्तुत करता है। जहां पाश्चात्य साहित्य में आत्मविश्लेषण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक महत्वपूर्ण, अधिक प्रमुख है, वही भारतीय साहित्य समष्टिगत चिंतन, करुणा, धर्म, निष्ठा पर बल देता है। अनुवादों के माध्यम से भारतीय साहित्य अंतरराष्ट्रीय विमर्श के और वैश्विक साहित्य को समृद्ध करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसी के संदर्भ में इसे और बल प्रदान करते हुए ये मेरा अगला पॉइंट है कि रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों सहित आधुनिक भारतीय ग्रंथों का वैश्विक रूप से अनुवाद। भारतीय साहित्य की प्राचीन कृतियां रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, पुराण, उपनिषद आदि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर ही नहीं, बल्कि इनका वैश्विक साहित्य में भी अमूल्य योगदान है। इन ग्रंथों का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, जिसमें मानवता के सार्वभौमिक मूल्यों, धर्म, कर्म, सत्य और आत्मबोध की शिक्षाएं विश्व भर में पहुंची हैं। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य नैतिकता, कर्तव्य और संबंधों की जटिलता को जिस रूप में प्रस्तुत करते हैं, वह विश्व के किसी भी साहित्य में दुर्लभ है। गीता का दर्शन न केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, बल्कि नैतिक संघर्ष भी सिखाता है। वेद, उपनिषद मानव, आत्मा, ब्रह्म और सृष्टि के रहस्यों पर गहन प्रकाश डालते हैं। इन ग्रंथों के
अनुवादों ने भारतीय साहित्य को वैदिक संवाद में एक सशक्त उपस्थिति प्रदान की है, जिससे विश्व साहित्य की गहराई, विविधता और दर्शनात्मक समृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधुनिक लेखकों के संदर्भ में देखें तो भारतीय लेखकों का अनुवाद बहुआयामी संवाद का माध्यम बना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनाएं, प्रेमचंद का साहित्य, शरद चंद्र की देवदास, श्रीकांत, परिणीता, नीरज सी चौधरी की रचनाओं का विश्व भर में अनुवाद हुआ तथा मानवता और सामाजिक यथार्थ को पहचान मिली। अज्ञेय, निर्मल वर्मा, अमृता प्रीतम आदि अनेक ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारतीय साहित्य को विश्व साहित्य में विशिष्ट दर्जा दिलाया है। मेरा अगला पॉइंट है समकालीन संदर्भ में विश्व तुलनात्मक साहित्य। इसके संदर्भ में ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल युग का प्रभाव। समकालीन संदर्भ में विश्व तुलनात्मक साहित्य पर ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल युग का प्रभाव अत्यंत व्यापक हुआ है। अमेजन, किंडल, गूगल बुक्स, एडुकेशन ऐप, जस्टिस प्रोजेक्ट, गुटेनबर्ग जैसे प्लेटफॉर्म ने विश्व साहित्य को एक क्लिक मात्र से सुलभ बना दिया है। अनुवाद और ई लाइब्रेरी के माध्यम से टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की आदि अन्य पाश्चात्य विद्वानों को भारतीय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है तथा किया जाता रहा है। भारतीय विद्वानों को भी विदेशी लेखकों के विदेशी लेखकों के साथ भी विदेश के विश्वविद्यालयों और पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। इस तरह ग्लोबल और डिजिटल प्रभाव ने तुलनात्मक साहित्य को न केवल व्यापक दृष्टिकोण दिया, बल्कि उसे सहज और सरल भी बनाया है, जो हमारे लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अब तुलनात्मक विश्व साहित्य में हम कुछ आधुनिक विमर्शों पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आधुनिक विमर्शों में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श आदि अनेक विमर्श हैं, किंतु इन तीन विमर्शों को मुख्य रूप से देखा जा रहा है। विश्व तुलनात्मक साहित्य में स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, किन्नर विमर्श आदि विभिन्न समाजों की पीड़ा, संघर्ष और पहचान की तलाश को उजागर करते हैं। ये विमर्श केवल एक स्थान या देश की नहीं, बल्कि वैश्विक चेतना से जुड़ी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन और टॉनी मॉरिसन की बिलव्ड दलित एवं अश्वेत के सामाजिक बहिष्कार एवं जातीय अत्याचार से जुड़ी रचनाएं हैं, तो वर्जीनिया वुल्फ की ए रूम ऑफ वन वंस और महाश्वेता देवी की द्रौपदी स्त्री चेतना के विद्रोह और स्वायत्तता को वैश्विक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की आत्मकथा मी हिजड़ा मी लक्ष्मी और सुसन स्ट्राइकर के लेखन लैंगिक अस्मिता के बहस को सशक्त बनाते हैं। इस प्रकार तुलनात्मक साहित्य विविध विमर्शों को तुलनात्मक विश्व साहित्य के मंच पर लाकर खड़ा कर देता है तथा वैश्विक अनुभवों को नई दृष्टि और गहराई प्रदान करता है।
अब निष्कर्षतः मैं यही कहते हुए अपनी बातें समाप्त करना चाहूंगी। और जितनी बातें बतानी थी वो हो गई हैं, और निष्कर्षतः बस यही कहना चाहूंगी कि तुलनात्मक विश्व साहित्य हमें हर प्रकार से समृद्ध करता है, हमारे विचार और दृष्टिकोण को विस्तृत करता है, और वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना को और अधिक बल प्रदान करता है। और अब मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर नंदिनी साहू मैडम को, जिन्होंने मुझे इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बनने का अवसर प्रदान किया। और हमारी कोऑर्डिनेटर परमिता दास मैडम को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे ऑफिस के स्टाफ्स और टेक्नीशियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तक हमारे साथ जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।